नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर क्लास 10th मैथमेटिक्स सेक्शन in our at the rate future saver academy channel. It's your channel. We are here deliberating the mathematics questions and problems to you very simply in the very easy method. And yesterday, what we have discussed the chapter number 4, quadratic equation, in which we had done the prime factorization of the numbers. Today, we'll start the next exercise based on the chapter number 4, and the name of the chapter is quadratic equation. And you know, quadratic equation is that equation whose degree or its exponent is 2, that is called a quadratic equation. So we will start today. The general quadratic equation ax square plus bx plus c is a general quadratic equation. Like this, if we are taking an example of this is the one of the particular, and this is also another equation. So there are so many quadratic equations possible, but the standard form of the quadratic equation is always ax square plus bx plus c, where a in that case is 3, b in that case is minus 7, because x is x, and c in that case is 9. So this is the general form of the quadratic equation. From this, we find the term b square minus 4ac. That is called b square minus ac. 4ac is called discriminant. This is called discriminant, and we always calculate the discriminant, and based on the discriminant value, we are defining, we are categorizing the roots. You know, yesterday we have discussed the roots of this equation by prime factorization method. Roots means values, its solution. So if number one, if b square minus 4ac greater than 0 and means a positive value, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो देन रूट्स क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स होंगे, उसको हम बोलेंगे कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट कर लिया. तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, whether this is a positive or negative. So take the example of this quadratic equation. Now compare that is this with ax square plus bx plus c is equal to 0. Then a is, students, a is our here x square same, a is x square coefficient is 1, there is no 1, but there is a 1, a is a 1, and b is, students, is minus 8, and c is your 10. So calculate b square minus 4ac. So put the values, b value of b is minus 8 square minus 4ac. A is 1, C is 10. So it is minus square of minus is plus. 8 square means 8 8 the 2 times 8 8 multiply 8 8 the 64 minus 4 1 the 4 10 the 40. So 64 minus 40 it is 24, which is greater than 1. If 24 b square minus 4ac is greater than 0, then what is the nature of the roots? These are the roots. रूट्स कैलकुलेटेड एट द लेटर स्टेज, बाद में कैलकुलेट करेंगे, बट द कंडीशन फॉर द ग्रेटर देन 0 इज two distinct real roots. We will write two distinct real roots, and the second condition now we will see if b square minus 4ac is equal to 0. अगर b square minus 4ac जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं वो 0 आ गया तो वहां पर क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, उसके इक्वल रियल रूट्स होंगे. टेक द एग्जांपल ऑफ टू इक्वल रियल रूट्स. नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल इन व्हिच द डिस्क्रिमिनेंट इज 0. तो दिस इज 6x sorry one particular 9x square minus 6x plus 1. So here a, students, we can compare. A is here 9, b is here, it is a minus 6, and c is 1. So calculate discriminant term b square minus 4ac. This is b is minus 6 square minus 4, a is 9,
and C is students 1. So square of minus square is minus minus plus 6 square 6 6 the 36 minus 9 4 the 36 36 1 the 36 and 36 minus 36 comes out to be 0, and if the discriminant b square minus 4ac is 0, then it has two equal real roots. Now we will do its third condition, that when b square minus 4ac is less than 0, that is the third condition, then no real roots exist for the third condition. The third condition is that if b square minus 4ac less than 0 means negative, less than 0 means negative number, minus number, then we will take the example of another number x square minus 5x plus 9 is equal to 0. So here you can compare this with ax square plus bx plus c with this standard equation. Always compare this particular equation. Here that equation is a is actually 1 and b is actually minus 5 and c you know it's 9. So calculate b square minus 4ac and b square you know minus 5 square, b square is minus 5 square, then minus 4ac, a is at 1 and c is students 9. Square of minus 5 minus minus plus 5 square is 25 and this 4 1 the 4 4 9 the 36. Then 25 minus 36, 36 बड़ा है उसमें उसके आगे साइन माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा minus 11, and which is minus 11 means less than 0. Less than 0 means there this condition exists that there is no real roots. So we will say there is no real roots for this condition, no real roots for b square minus 4ac less than 0. So पूरी वीडियो को देखना स्टूडेंट्स. Now we will do the exercise. In exercise there are different types of problems, different types of sum. We will solve the sum one by one by very unique method, very entertaining method. So don't skip the video in between the teaching lecture, so you can now enjoy the very some part of the exercise 4.3. So let's start. The first one is find the nature of the roots. So we are doing the second part. 3x square minus 4 square root 3x, these are the statements, plus 4 is equal to 0. Question is find the nature of the roots. Nature of the roots means whether the roots are distinct roots, whether the real roots, or whether no real roots. These are the nature of this sum. And also question states that if real root exists, find them. अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर गए तो फाइंड उसको फाइंड करने का वे क्या होता है, फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. वेट फॉर ए व्हाइल. This is the formula, minus b plus minus b square minus 4ac square root upon 2a. Very simple formula. Let's see. So first of all, compare with this ax square plus bx plus c is equal to 0. Then a you know it is 3 and b is x के अलावा जो है b है वो minus 4 square root 3, minus 4 square root 3 है आपका ये, and c आपका कितना हो गया, c बन गया 4. तो कैलकुलेट टर्म b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर d. कैपिटल d के साथ इसको लिखते हैं. तो b स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और उसके आगे माइनस 4, a आपका है 3 और c आपका है 4. तो माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस 2 बार मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, और जो स्क्वायर रूट 3 है उसका स्क्वायर कितना आ गया, 3 3 या 9, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3. ये आपसे मल्टीप्लाई होंगे 16 और 3, ये मल्टीप्लाई होंगे आपसे क्योंकि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर है, और ये बन गया 4 3 12 4 द 48. तो 16 3 द 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. आपने पढ़ा था कि b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के इक्वल आ जाएगा तो उसके इक्वल रियल रूट्स होंगे, इक्वल इसके इक्वल रियल रूट्स होंगे. जो डिस्क्रिमिनेंट का 0 से बढ़ गया, 0 ही आ गया, सॉरी नॉट 0 से बड़ा नहीं है, 0 आ गया, रियल इक्वल रियल रूट्स होंगे इसके. तो अगर इक्वल रियल रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमने लगा देना है.
x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -4√3, ये माइनस का साइन पहले लग गया, ये आ गया -4√3, आगे आ गया प्लस माइनस b² - 4ac का स्क्वायर रूट पहले डाल दो और b² - 4ac की वैल्यू पूरी की पूरी जो हमने कैलकुलेट की है यहाँ पर वो आ गया 0/2a, a is actually 3. So this is now x is equal to minus multiply 4 square root 3, and you know square root 0 का square root 0, so leave the square root. Then after that there is a plus sign, minus sign, it has no value because 0 is there. 2 3 is 6, because there are value plus and minus but equal roots suggest that these are cancelled now. 2 to the 4, 2 3 is 6, so x is equal to 2 square root 3/3. Second root also equal roots 2 square root 3/3. This is the real root sum in which we have discussed the real roots, how they exist. Now see the another part for the problems and also for your more clarification about the sum. So let's see, it's a third part, students, and now it is 2x square minus 6x. हाँ जी, it is a 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. This is the sum. Now after that we can compare this ax square plus bx plus c is equal to 0, and also we will arrange this now, because if the real root exists then we can calculate by this formula. Then a, students, here is a is actually 2 and b is actually, students, -6 is there and c is our 3. So calculate b² minus 4ac, which is equal to b means -6 square minus 4a is actually 2 and c is actually our 3. So square of minus square minus 2 times num plus 6 square is 36 minus 4 to the 8 3 to 24, that is equal to 12, which is greater than 0. And you know, if b² minus 4ac greater than 0, then this is the condition for two distinct real roots. अलग अलग दो रियल रूट्स की कंडीशन चाहिए अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर आ जाएगा। और क्वेश्चन है प्रॉब्लम में कि अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने के बाद, तो उसको फाइंड आउट करो। अब फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो x आपका ये बन गया, आगे है -b आपका कितना है यहाँ पर लिखा है आपको -6 प्लस माइनस, और b² माइनस 4ac कितना है 12, उसका स्क्वायर रूट हो गया ओवर 2a। a आपका कितना है, दैट इज 2। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपका माइनस प्लस हो गया 6 बन गया, प्लस 12 के फैक्टर बना लो आप, 2 into 3 हो गया, और नीचे इसके कितना आ गया 2 to the 4। तो यहाँ पर आ गया x आपका 6 प्लस माइनस। अगर आपको मालूम है कि अगर पेयर बन जाए, दो जोड़े बन जाएं, तो उसमें 2 में से 2 बार आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका 3/4। यहाँ से 6 में और 2 में से 2 कॉमन है, उसको 2 कॉमन ले लो, यहाँ 2 3 6 होता है, 2 3 6 लिख दिया, प्लस माइनस 2 यहाँ से कॉमन √3 हो गया ओवर 4। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया 4, ये 2 to the 4 हो गया। देन व्हाट वी हैव लेफ्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 3 विद ओनली दिस प्लस साइन, ओनली टेक द प्लस साइन, one time the plus sign over 2, second time this 3 as it is and take the minus sign, 3 minus 3 over 2। तो पहले हमने प्लस साइन ले लेना है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 over 2, फिर आपने 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 over 2, उसका दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा, तो जुड़े रहना प्लीज अच्छी तरह से, आपने मिस नहीं करना। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा समझ के, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं और @future saver academy को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सम यहाँ पर अवेलेबल होंगे। RD शर्मा के मैथ के भी ऊपर हम सम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आगे वाला है आपका, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू के की वैल्यू, के कोई कांस्टेंट है, उसकी के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए क्या दिया है आपको, 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन है, 2 इक्वल रियल रूट्स गिवन है। ये हम दोनों पार्ट ही कर लेंगे। तो एक तो आपका है ये 2x² प्लस kx प्लस 3। अगर 2 इक्वल रियल रूट्स दिए हुए हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन लगा देनी है। 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, उसका जो b² माइनस 4ac है कैलकुलेट करके वो 0 के इक्वल रख देना है।
तो यहाँ पर हमने सीधा भी लिख सकते हो आप ऐसे कि ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपैरिजन किया, तो यहाँ पर a आपका कितना आ गया, ये 2 है, a2 बन गया आपका, b आपका कितना आ गया, वो k है, कांस्टेंट k बन गया, c आपका कितना आ गया 3। तो आप b² माइनस 4ac को कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स। b² कितना है आपका, b है आपका k² लिख दो, 4a आपका है 2 और c आपका है 3, तो ये बन गया k² माइनस 4 टू द 8, 8 3 24, ये आपका b² माइनस 4ac आ गया। और आपको ये गिवन है, गिवन दैट रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल रियल, और you can say equal real roots are given that equal roots are there, इक्वल रूट्स हैं, तो उसके लिए आपको मालूम है कि b² माइनस 4ac क्या होता है, 0। तो b² माइनस 4ac 0 होता है, तो k कैलकुलेट करना है। b² माइनस 4ac है कितना, k² माइनस 24, वो 0 के इक्वल रख लिया, और k² कहाँ के आ गया, माइनस 24 दूसरी तरफ जाकर प्लस 24 हो गया, और k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, प्लस माइनस आप डाल दोगे, ये स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा, जैसे 2 की पावर दूसरी तरफ उल्ट कर 1/2 हो जाएगी, और 1/2 को हम अंडर भी बोल देते हैं, ऐसे लिखते हो। तो k आपके लिए कितना आ गया, प्लस माइनस 24 के आप फैक्टर बना लो, ये आ गया 2 टू द 4, 4 टू द 8 और 8 3 24, तो ये फैक्टर बन गए। और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 में से 2 पेयर में से 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और आगे क्या बच गया, ये एक 2 और ये 3, 2 3 आपका 6 अंदर रह गया स्क्वायर रूट के बीच। तो जो दो वैल्यू आ गई आपकी, एक तो k की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो 2 स्क्वायर रूट 6, और दूसरी k की वैल्यू आप माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 भी लिख सकते हो। अगर दोनों ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करके लिखनी हो तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएगी। इसके बाद एक और सम है जिसमें हमने k कैलकुलेट करना है, और कंडीशन उसके लिए स्टूडेंट्स क्या दी है, कंडीशन सेम ही है। क्या कंडीशन है कि इक्वल रियल रूट्स हैं, तो उसकी कंडीशन हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे इस स्टेटमेंट में से। तो यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट है, वो है आपके लिए x माइनस 2 आपका आ गया, वेट करो स्टूडेंट्स, ये बन गया x माइनस 2 हो गया आपका, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, kx को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, k लिख दिया, x को x के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखना, तो जब मल्टीप्लाई करके जो इसके पावर्स होती हैं, जो एक्सपोनेंट्स होती हैं डिग्री, वो ऐड होती हैं अगर सेम बेस हो। यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर x है, इसकी पावर कितनी है 1 1, तो 1 1 ऐड होकर कितनी होगी 2, तो ये बन गया x²। तो यहाँ पर लिखेंगे x को x के साथ मल्टीप्लाई करके x² हो गया, kx को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 2 kx लिख दो, आप माइनस 2 kx लिख दिया हमने, और आगे आपका कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन बनने के बाद हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद हमने a को कितना लिख रहे हैं, ये k बन गया, b हमारा वो माइनस 2 के है, माइनस 2 के लिख दो, और c हमारा है 6, ये c आपका 6 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, वो हमने b² माइनस 4ac को कैलकुलेट करना है। तो b² कितना है, b की वैल्यू है माइनस 2 के, यहाँ पर मैंने पुट कर दी b की वैल्यू माइनस 2 के, माइनस 4 ऐसे लिख दिया, a आपका है k, तो a आपने k लिख दिया, c आपका है 6। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसके बाद k का स्क्वायर हो गया 4 के स्क्वायर, माइनस आफ्टर दैट 6 4 दैट 24, एंड 24 मल्टीप्लाई बाय k इट कम्स 24k। नाउ रियल रूट्स, नाउ इक्वल रियल रूट्स गिवन है आपको। दैट मीन्स क्या होता है उसका इक्वल रियल मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac कंडीशन है, जो शर्त है वो कितनी रखनी है हमने 0। तो b² माइनस 4ac ये है आपका आया, अभी देखा है आपने 4k² माइनस 24k। तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ सॉल्व, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, 4k² माइनस 24k इज इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ पर कॉमन आ गया आपका 4, और k² और k में से k कॉमन है क्योंकि दोनों में k है, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर k बच गया, माइनस 24 का 4 कॉमन, तो मल्टीप्लाई 4 को किसके साथ करेंगे 24 आ जाए 6 के साथ, और k पहले कॉमन था इज इक्वल टू 0। या इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स इधर 4 0
k0 और k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो तीनों टर्म 4k और k माइनस सिक्स जीरो के इक्वल है, इसका मतलब k4 भी जीरो हो सकता है, k भी और k माइनस सिक्स भी जीरो होगा अकेले के लिए। 4 जीरो हो नहीं सकता, 4 तो नंबर है, वो जीरो नहीं। तो आगे क्या बच गया आपका, जहाँ k0 और दूसरा क्या बच गया आपका k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर k आपका कितना आ गया माइनस सिक्स, उधर जाकर प्लस सिक्स, ये जो वैल्यू आ गई आपकी k एक जीरो आ गई और दूसरी k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये था सम ऐसे। अब एक और थ्योरेटिकल का सम हमने करना है, तो आपको @future saver academy को जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। आपका चैनल आपके लिए ही बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स इसकी मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें। तो क्वेश्चन है आपका थर्ड, मैं इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखता हूं। इज इट पॉसिबल, यह है इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है, कैसे, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है, मैंगो का बाग भी बोल सकते हो आप, बनाना है, जिसकी लेंथ हुज लेंथ इज, जिसकी लंबाई जो है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, डबल 2 टाइम्स है, ये बनाना है। एंड एरिया उसका है, एरिया जो मैंगो ग्रोव है ना उसका एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है कि बना सकते हैं एरिया ऐसे, देन फाइंड ए पॉसिबल, देन फाइंड लेंथ L एंड B मींस ब्रेथ। तो हमने क्या करना है सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स, आपका जो लेंथ है ना वो ब्रेथ से ट्वाइस है, तो आपने ब्रेथ सपोज कर लेनी है, मान लेनी है लेंथ, जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर ग्रोव की, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेक्टेंगल का साइन पाकर, ग्रोव मैंगो ग्रोव एक्चुअली उसकी लेंथ सपोज कर ली हमने x मीटर मान। क्यों ब्रेथ मान लिया हमने x मीटर, सॉरी ब्रेथ ही x मीटर क्यों मानी, क्योंकि लेंथ उसके डबल है, तो पहले ब्रेथ यूज कर लेंगे, तो लेंथ उसकी कितनी आ जाएगी, उसका डबल कर दो आप। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ये कितनी है आपकी 2x होगी, ये होगी 2x में। एरिया आपको गिवन है 800, रेक्टेंगुलर जो ग्रोव है ना उसका एरिया आपको कितना है दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर का एरिया वैसे भी कितना होता है वो आपको मालूम होगा, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 800 ऐसे हो गया, लेंथ की वैल्यू कितनी है 2x हमने लिख ली, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू क्या बन गया 800। अब यहां से सॉल्व करता हूं मैं, देखो अब ये अगर 2x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 800 हो गया। इसके बाद x स्क्वायर कितना आ गया आपका, ये 2 नीचे आ गया, 800 ओवर 2 को डिवाइड कर दो 800 से, ये बन गया आपका 400। तो x स्क्वायर आ गया आपका 400 को हम 20 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर x का स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे स्क्वायर है x का, यहाँ पर 400 किसी का स्क्वायर लिख देंगे, 20 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, जब स्क्वायर रूट लेंगे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए, x कितना बनेगा हमारा, x कितना आ गया आपका 20, x क्या आ गया हमारा 20, और x अगर 20 आया तो ब्रेथ कितनी सपोज की थी मैंने 20, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर उसकी ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रोव मैंगो ग्रोव की कितनी होगी 20 मीटर, और लेंथ कितनी सपोज की थी हमने, लेंथ सपोज की थी 2x, यहाँ पर 2x लिखी मैंने, तो 2 इंटू एक्स कितना है आपका 20, तो वो कितनी होगी लेंथ आपकी 20 टू द 40। तो ऐसे इसको 20 और 40 मीटर की हम लेंथ और ब्रेथ की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह ही आपका अगला सम है जिसमें आपने एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स की दी हुई है 20 ईयर्स, दोनों दोस्तों की उम्र है 20 ईयर्स, और 5 साल पहले उनकी जो एजेस का प्रोडक्ट का था 48 था। तो अगर एक फ्रेंड की, फर्स्ट फ्रेंड की एज आप मान लोगे x है, दूसरे की आप क्योंकि सम दिया हुआ 20, तो दूसरी 20 माइनस एक्स होगा, एक की x को आ जाएगी, दूसरी 20 माइनस एक्स होगा, और उसको प्रोडक्ट कर देना है जब 5 साल पहले की उम्र है। तो जिसकी उम्र x है अभी, उसकी 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 5,
जिसकी अब x प्लस 20 है, सॉरी दूसरे की जी 20 प्लस एक्स, तो 20 प्लस एक्स है 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स माइनस 5, तो बन जाएगा 20 माइनस 15 प्लस एक्स। तो पहले x की होगी आपकी x प्लस एक्स माइनस 5 और दूसरे की होगी आपकी 15 प्लस एक्स। तो ये दोनों की प्रोडक्ट करके आप कितनी लिखोगे 48, यहाँ से x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे। अगर x की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है जैसे यहाँ पर अभी 20, तो आपकी एज जो दोनों फ्रेंड्स की कैलकुलेट हो जाएगी। सिमिलरली जो आपका फिफ्थ सम है वहां पर पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है रेक्टेंगुलर कॉर्ड का, और मैं आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दूं जैसे एरिया का होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर कार्टन कितना होता है। हाँ, ये बोल रहे आप 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो वहां पेरीमीटर का रिजल्ट जाके लेंथ प्लस ब्रेथ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके पेरीमीटर का रिजल्ट आपने ले आना है। तो आज के स्टूडेंट्स आज के लिए इतना था। हैव ए नाइस डे, कीप एंजॉयिंग दिस चैनल, इट्स योर चैनल। आपका दिन खुश रहे, बढ़िया रहे। बाय स्टूडेंट्स।